point this 2D array? इंटीजर इज श्योर, क्योंकि इंटीजर एरे को अगर पॉइंट करना है तो पॉइंटर का डेटा टाइप भी इंटीजर ही होना चाहिए। अब ये सिंटैक्स को अगर फॉलो करें हम तो इट विल बी लाइक दिस स्टार p is the name of the pointer. Okay, you can keep any name, you can keep q r p1 p2 whatever you want to keep. Sorry my mistake, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना है आपको, पैरेंथेसिस करना है। Okay, and now what should I write in a square bracket? 4. 4, right? 4. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या निकलता है जब आप ये डिक्लेरेशन करते हैं। व्हाट डज मीन, राइट? डज मीन दैट p is a pointer which can point to a array of 4 elements. इसका मीनिंग क्या निकलेगा? p is a pointer which can point to a array of 4 elements. और देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर 3/4 का एक 2D एरे होगा, राइट, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम्स, राइट, एंड 3 रोज। अगर हमारे पास एक 3/4 2D एरे होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 वन डायमेंशनल एरे, एक, दूसरा, ये तीसरा, राइट। अब देखो जब आप p डिक्लेयर करेंगे ये इंटीजर p, तो p का मतलब कि ये क्या मीनिंग निकलता है इसका? p इज अ पॉइंटर विच कैन पॉइंट टू एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स, मतलब ये हमारा वन डायमेंशनल एरे ही है। ओके, नाउ सो बाय डिक्लेयरिंग दिस you can say that p is now capable to point an array which has 4 elements, right? P can point to an array which has 4 elements, and that is why the syntax of pointer to 2D array is like this. Please remember, please remember, in a square bracket you have to write number of columns. This is compulsory. अगर इस तरह से आपने पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल वाला इंटीजर स्टार p लिख कर उसको आप एक 2D एरे का बेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल बी एरर, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। So this is the most important thing, right? That is the same thing I have written here. अब initialization कैसे करेंगे pointer to 2D array? That is one way. You suppose the 2D array name is x, so you can initialize a pointer to 2D array like this: p equal to ampersand x00. x00 मतलब क्या? Of first element in the first row or first column, right? Well, like same thing. 2D array has first element in a first and first column, so it is divided as x00. So when you write p equal to ampersand x00, it will assign the base address of 2D array to your pointer. So this is one way. Simple another way is writing by p equal to x, right? Because x is the name of array, and we already discussed that name of array points the base address of that array. So p equal to x is all correct. So these are the two ways, right? Now, how to access the 2D array element using pointer? हमने pointer declare कर दिया 2D array, हमने उसे initialize करवा दिया। अब now there is a time to access each element of pointer array using to access each element of 2D array using pointer. So first of all हमने p declare किया है small, okay, उसको initialize करवाया तो वो किससे point करेगा? It will point to the base address of 2D array. What I am trying to tell you is, after writing this statement, ये आपने लिख दिया, right? You have written this. So now what p does? P points to base address of 2D array ampersand x00 या फिर p equal to x. Now p is pointing to base address. Now if I write p plus I, what will happen? Do you know? When you write p plus I, why I have written I? Because a 2D array may have multiple rows. So at a time, if you want to point any row, you need an increment variable I. That you know because all is taught to you in CP1
array to two-dimensional array, right? So when we write p plus I, it will point to the ith row. अगर हमने प्लस जीरो लिखेंगे, अगर हम p प्लस जीरो लिखेंगे तो वो फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा, अगर हम p प्लस लिखेंगे तो वो सेकंड रो को पॉइंट करेगा, राइट? देन आई एम एडिंग. Now, if I write this code, please look at the code. Star p plus I, outside the parenthesis star plus j. इससे क्या? See, we know that p plus I points to I row, right? तो उसके बाहर इसको मैं पैरेंथेसिस में कवर करके अगर यहाँ पर मैं स्टार लिखता हूँ तो क्या होगा? Then प्लीज लिसन केयरफुली. अगर मैं p प्लस आई को पैरेंथेसिस में कवर करके बाहर स्टार लिखता हूं तो क्या होगा? उस रो का बेस एड्रेस मिलेगा, मतलब उस रो में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसका एड्रेस मिलेगा. अगर आप p प्लस टू लिख रहे हैं मतलब कि थर्ड रो का एड्रेस आपके पास आ रहा है p प्लस थ्री, मतलब गेटिंग द बेस एड्रेस ऑफ थर्ड रो. एंड नाउ स्टार इन पैरेंथेसिस p प्लस थ्री विल गिव यू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द थर्ड रो. ओके, ये मीनिंग निकलेगा. और उसके बाद प्लस जे करेंगे तो उससे क्या होगा? इट विल पॉइंट टू द jth एलिमेंट द ith रो ऑफ द एरे. इट विल पॉइंट टू द jth एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ द एरे. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो होल्ड योर ब्रेथ, नीचे मैं एग्जांपल दे रहा हूं. नाउ फाइनली लुक एट दिस कोड. p plus I whole star plus j whole star will give you the value stored in the cell ij. मतलब 2D एरे है, उसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, और आपको सेकंड रो का सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है. तो I will be 1, j will be also 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, राइट? तो when is 1 and j is 1, you are going to access second element of second column. So star p plus I plus j, star p plus I plus j whole star will give you the value stored at a second row and second column, right? So how this will work? Now let us see with an example. Yes, any question? 85. What is doing? Okay. Turn off. Turn off your Ganesh Virpara. Okay. Okay. So now let us see with this example, right? This is the thing which we discussed. हमने एक integer A34 3 rows और 4 columns वाला array किया और उसमें हमने 11, 12, 13, 14 in the first row, 21, 22, 23, 24 in the second row, and 31, 32, 33, 34 in the third row. तो अब देखो, जब हम equal to x लेते हैं तो ये जो पूरा मेमोरी ब्लॉक असाइन हुआ है उसका बेस एड्रेस p को मिल जाता है. ओके, देन राइट p प्लस जीरो. सो उससे क्या होगा? फर्स्ट रो है, क्योंकि i जो होता है और ये इंडेक्सिंग है और वो हम जीरो से शुरू करते हैं. सो व्हेन i इज इक्वल टू जीरो मतलब फर्स्ट रो. सो व्हेन वी राइट p प्लस जीरो इट विल पॉइंट टू द फर्स्ट रो. ओके, अब सिर्फ इतना कोड देखो, इतना कोड स्टार p प्लस जीरो. उससे क्या होगा पता है? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना दैट इज 11 वेयर 11 इज स्टोर्ड, उसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस मिल जाएगा आपको. p प्लस जीरो होल स्टार लिखने से जो फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस होगा वो मिलेगा. उसमें अगर आप प्लस जीरो ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक्सेस कर रहे हो.
अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं, ओके, तो मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। अभी सिर्फ एड्रेस मिला है। सपोज आपको 12 एक्सेस करना है, ये जो 12 वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है? यू हैव टू राइट स्टार p plus 0 because it is first row प्लस ये कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट है, तो हमारा j जो इंडेक्सिंग होगा j, इट विल स्टार्ट विद 0। तो यहाँ पर 12 को एक्सेस करने के j का वैल्यू होगा 1, राइट? बिकॉज सेकंड 0 से शुरू होता है, तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के लिए वैल्यू विल बी 1 एंड दिस होल स्टार। ये कोड लिखोगे ना, p plus 0 whole star plus 1 whole star, you will get value 12. So this is the funda. Okay, this is the funda. P plus 0 points to the first row. Star p plus 0 will get you the first element address, and then star p plus 0 plus whole star will give you the value of the second element of first row. This is the way it works. अगर फिर से अगर एक बार दिखाना है मुझे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस पे। Okay, now from here you can understand P is giving you the address of this entire block। मेमोरी ब्लॉक जो 20 बाइट होंगे उसका बेस एड्रेस P के पास है। P प्लस 0 लिखने से आपको फर्स्ट रो का बेस एड्रेस मिल रहा है, राइट? स्टार P प्लस 0 लिखने से ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल रहा है। ओके, सिमिलरली P प्लस लिखने से सेकंड रो बेस एड्रेस मिल रहा है। स्टार P प्लस 1 प्लस अगर 0 मैं लिखता हूँ तो मुझे इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। अब आप देखो, मुझे 13 एक्सेस करना है, 13, तो उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा? वो मैंने रीड से लिखा है, आपको सिर्फ वो कोड रीड करना है। इज इट ट्रू? आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको लग रहा है सर मेरे को समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। 22 को अगर आपको एक्सेस करना है तो रेड फॉन्ट में मैंने कोड लिखा हुआ है। 34 को अगर आपको एक्सेस करना है तो रेड फॉन्ट में मैंने कोड लिखा हुआ है। go play or try to absorb. If you're not able to understand, ask me. I don't know. Is it visible? Everyone? Hello? Is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm just Yes, sir. confirming this because we have an internet issue. Okay. So please look at the table and the rate form code. If you doubt, I'm waiting for 2 minutes. मैं ये सारा जो पॉइंटर है ना सब निकाल देता हूँ, so screen will be clear. Internet is fine, sir. I guess it is clear to all, I think. So let us go ahead and let us discuss one program. Okay, a simple one. Uh, I'm changing slide. If you have still any doubt, you can ask me or I can go ahead. Okay, your no answer means yes. Okay, so here we are going to discuss one program having the title is write a program to add two matrices and display resultant matrix using PF। मतलब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? सबसे पहले we have to read two matrix, okay, and then we have to perform an operation element to element summation, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है, मतलब हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ
वन मैट्रिक्स एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, उसका एडिशन किया तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, तो उसको प्रिंट करवाना है। एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी डन यूजिंग पॉइंटर। Okay, we are not going to use name of an array, or we are not going to use xij. So so let's see that program. Okay, oh my god, it came one at a time. Please observe line by line, right? हम यहाँ से check करते हैं. So the our program starts from here. These are the two header files by default, void main. And now this is the most important part, declaration of pointers as well as 2D array. देखिए, मेमोरी हमारे पास तभी रहेगी जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आपको मेमोरी नहीं देगा। सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर करने से काम नहीं चलेगा, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। उसी लिए हमने 3 2D एरे डिक्लेयर किए हैं। यू कैन सी इंटीजर A44, B44, C44. There are 3 2D array we have declared. They have 4 rows and 4 columns, right? 3 2D array declare किए हैं हमने. We have declared 3 2-dimensional array, A44, B44, C44. All 3 2D array are integer. Along with that, we also declared ij, increment variable for row and increment variable for column. And now please carefully observe the pointers which we have declared, right? First pointer name is integer star p, which is written in parentheses and in a square bracket 4. So now someone should tell me why in a square bracket it is 4. Is the number of Is columns. number of columns. Exactly, because here the number of columns are 4. So what do you mean by when we write integer star p in parentheses and square bracket 4? It does mean that p can point to a array of 4 elements, and this is required because we are dissecting, we are chopping a t array into one dimensional arrays of collection one dimensional array where each one dimensional array is a row. Each row represents one dimensional array. That is why it is important, right? Integer star p4 star q4 star r4. So these 3 pointers, one pointer will carry the address of a, one pointer will carry the address of b, and one more will carry the base address of c. And now we will use p, q and r not only to read but perform all the operations. हम summation करेंगे element to element, हम resultant matrix को print करेंगे using pointers. Okay, let's go ahead. After CLR SCR, we read these 3 lines. What is this? It is it is Initialization. initialization. Yes, initialization of pointers. p का initialization किया हमने, a का address, q को b का एड्रेस और r को c का एड्रेस दिया. Now it's time to read the data. Data entry करनी है. अब enter first 4x4 matrix रो वाइज. ये मैं रो वाइज वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये कंपलसरी है, क्योंकि आप जब रो 2D एरे एलिमेंट एंट्री करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर डेटा हो रही है. रो वाइज करनी है तो रो वाइज कर सकते हैं, कॉलम वाइज करनी है तो कॉलम वाइज कर सकते हैं, बट रो वाइज. सो द कोड इज वेरी सिंपल, known to all of you. Outside will be I equal to 0, I is less than 4, I plus plus. Inside another loop, j equal to 0, j is less than 4, j plus plus. And inside the inner loop, there is a scanf function, percentage %d. Please observe the argument. एड्रेस पास करना होता है. scanf फंक्शन जब भी हम कॉल करवाते हैं, हमें एड्रेस पास करवाना होता है ताकि उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाए. तो यहां पर अगर मुझे ith रो में jth एलिमेंट का एड्रेस, ith रो में jth एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो ये कोड आएगा p प्लस आई होल स्टार प्लस j. आर यू एग्री विद दिस कोड? समझ में आ गया ये? Yes, sir. Okay, so this entire loop will run and will read the first array. Similarly second matrix यहाँ पर है,
उसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो scanf का आर्ग्यूमेंट है उसमें छोटा सा चीज किया है, यहाँ p की जगह पर q है। q है इसका मतलब ये b का जो b 2D एरे है, 2D एरे नेम b, उसमें एंट्री होगी। ओके, and now we want to print a resultant matrix. Resultant matrix will be summation element wise of first and second matrix. Okay, तो उसके लिए हमने क्या करवाया, we run the row wise loop, inside of that column wise loop, and inside of that one simple operation is performed. Please write, this is a key code, मतलब ये जो कोड है ये सारे काम कर रहा है। तो हमें क्या करना, फर्स्ट एलिमेंट, each element of the array A, each element of array B, उन समेशन करवाना है एलिमेंट वाइज। तो हमने लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड पे, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार p प्लस आई प्लस j होल स्टार। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। जब i 0 होगा j 0 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू मिलेगा, जब i 0 होगा j होगा तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का वैल्यू मिलेगा। व्हेन j विल बी 2, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, j विल बी 3, फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फिर i इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का एलिमेंट, लाइक दिस। सो i and j are most important, right? So this way it will do the summation element wise, and then printf function is used to print them। सर सारा निकलना पड़े printf, ये जो है ये आपको फाइनल एलिमेंट जिसमें दो एलिमेंट का समेशन होगा उसका आंसर प्रिंट करेगा। तो आर्गुमेंट देखिए r प्लस आई होल स्टार प्लस j होल स्टार। सो दिस वे इट विल डू द समेशन, राइट? यही वैल्यू जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, yes, somebody is asking something. yes sir, Yeah. the one you have done arrow, I didn't understand that statement. अब Star समझ में आ गया? star हाँ star one. हाँ, if you still want to ask you can। Yes, can you explain once again? ये जो मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है ऊपर वो, या That या read arrow. ओके, या आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सो मेरे पास, मैं सिर्फ पूरा एलिमेंट बनता है, सपोज p इज हैविंग, p इज पॉइंटिंग a, का फर्स्ट रो जो है उसमें लिखा है 1 2 3। अब q जो है उसका जो ये बी एरे को पॉइंट कर रहा है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो है उसमें मैंने स्टोर किया है 4 5 6, राइट? तो अब ये जो कोड है स्टार प्लस आई प्लस जे होल स्टार, अगर आई 0 होगा, ओके, और जे भी जब 0 होगा तो जो ये जो लिखा है मैंने स्टार p प्लस आई प्लस जे होल स्टार, इट विल एक्सेस दिस वैल्यू। ओके, और प्लस, अब ये देखिए q प्लस आई होल स्टार प्लस j होल स्टार, जब i और j दोनों 0 होंगे तो इट विल एक्सेस दिस वैल्यू। ओके, तो इन दोनों का समेशन होगा 1 प्लस 4 का समेशन होगा। और अब ये जो आंसर है वो कहाँ जाएगा, तो हम तीसरा एक 2D एरे डिक्लेयर करके रखा है जिसको r पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए एक मेमोरी तो होगी। ओके, फर्स्ट, तो ये जो जगह है, ये जगह फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इन द सी एरे और एरे पॉइंटेड बाय r, यहाँ पर वो वैल्यू 1 प्लस 4 एक्सेस जो स्टोर होगी। तो ये जो जगह है इसको एक्सेस करने के लिए हमें ये कोड लिखना पड़ रहा है, स्टार r प्लस आई प्लस जे होल स्टार। तो ये कोड इस जगह को एक्सेस कर रहा है। जब i का वैल्यू 0 और j का 1 होगा तो 2 प्लस 5 यहाँ पर 7 स्टोर हो जाएगा। i 0 और j 2 होगा तो 3 प्लस 6 उसका समेशन 9 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। Am I able? I hope I have given proper answer. Yes sir.
Thank you, sir. Okay. Yeah. So let us run this. This code is ready for with me, and let us see this. Mm, yeah. Is it visible? Yes, sir. So Yes, it sir. is it Yes, is sir. same code. It is same code. You can see the declaration of arrays. Yes, and pointers are declared, and image is also the same thing. Please observe this. Okay, same thing is written here. So now let us run this. That's nice. It's compiled, and now okay. So it is asking enter first 4 by 4 matrix row wise. So हमें row wise entry करनी है. So I'm entering first row 1. Sorry, 1, 2, 3, and 4. This is 4 by 4 matrix. So 4 element in this row. Oh, something is wrong. Let me check. एक second. Was happened because first entry I have done which was wrong. Now it will be fine. Alt F9, Control F9. So now you can see this one, say 2, 3, 4. First row completed. Up second row. Uh, again, uh, starting from 2, 3, 4, 5. Third row 3, 4, 5, and last row 4, 5, 6, 7. Right now it is asking for second matrix 4 by 4. Again Hello, sir. So your voice is not audible. hello. Sorry, I was out of mute. Now am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope you are now clear what is pointer, how to use pointer for 2D array, right? So let us go ahead. New topic. So that's all. Now new topic. Pointer to string. Now we discuss pointer to 1D array. We discuss pointer to 2D array. Now third type of array, that is character array, which is also known as a string. So how we can use pointer to access string and its element? Let us learn that, right? ये टेबल अभी आपको दिख रहा है क्योंकि उसको मैं एनिमेटेड नहीं कर पा रहा हूँ. No problem. Okay, so read the first statement. A string is a array of characters.
stored in a consecutive memory location, मतलब सेम वही फंडा है जो हम कब से डिस्कस कर रहे हैं. Whenever you will declare an character array, it will be stored in a contiguous memory space side by side. अगर पहला कैरेक्टर h है तो उसके बगल में ही दूसरा बाइट होगा जिसमें e स्टोर होगा, उसके बगल में तीसरा बाइट होगा जहां पर l स्टोर होगा, चौथा बाइट होगा बगल में ही उसमें l, उसके बगल में o, और लास्ट वाला बाइट होगा जिसमें null स्टोर होगा. So whenever we declare a array, a memory will be provided in a contiguous space, right, and a base address will be given back to the program, right. ये देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कैरेक्टर मैसेज 10 इज इक्वल टू हेलो, तो जब प्रोग्राम रन होगा मेमोरी क्रिएट होगी और मेमोरी में साइड बाय साइड हर एक कैरेक्टर को स्टोर किया जाएगा. तो इसका हम यूज कर सकते हैं टू यूज पॉइंटर टू एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. वो तो आप जानते ही है, ये सब तो थियरी आपने पढ़ा ही है. Since strings are character array, pointer to string is treated in a way similar to pointer to one dimensional array. जिस तरह से हमने pointer to 1D array सीखा था वही फंडा यहां पर लगाना है, सेम फंडा डिटो, राइट. देखो हमने सीखा था कि अगर हमें pointer to one dimensional array यूज करना है तो सबसे पहले pointer should be assigned the base address. Suppose p is the pointer. अगर उसको ये एड्रेस अगर मिल गया बेस एड्रेस, तो बाय राइटिंग p प्लस आई, यस, यू कैन गेट द एड्रेस ऑफ ith कैरेक्टर. और अगर मैं p प्लस आई होल स्टार कर दूं तो मुझे वो जो लोकेशन है ith कैरेक्टर का जो मेमोरी एड्रेस है वहां पर जो भी कैरेक्टर स्टोर्ड होगा वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट. तो इट इज नॉट मच, देयर इज नो नीड टू मच डिस्कस ऑन इट. ओके, प्लीज लेट मी नो. अभी भी 6 मिनट बाकी है, लेकिन एग्जैक्ट जब आपका टाइम हो जाए तो मुझे बताना, तो हम करेंगे. यहाँ से निकल जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज इज द पॉइंटर, एंड व्हेन यू राइट मैसेज प्लस 4 यू कैन. सर आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, मैसेज पॉइंटर है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, एम आई करेक्ट? Yes, sir. क्योंकि नाम जो होता है कैरेक्टर एरे का उसका यूज आप कर सकते हैं एज ए पॉइंटर. तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है कैरेक्टर मैसेज 10. तो यहाँ पर मैसेज जो नाम है एरे का, इट कैन बी यूज एज अ पॉइंटर टू दैट कैरेक्टर एरे. तो मैसेज इज द नेम एंड इट इज अ पॉइंटर विच हैज अ बेस एड्रेस, राइट. तो जब मैसेज प्लस 4 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बाइट का एड्रेस मिलेगा. ओके, और अगर मैं उसके बाहर स्टार कर दूं तो I can access this character O, right. So this is the funda, this is the logic. एक दूसरा एक मेथड है टू क्रिएट अ पॉइंटर स्ट्रिंग विच इज दिस. देखो यहाँ पर इसके मैंने एक प्रोग्राम आई थिंक मैकेनिकल वालों के MH1 और MH3 में मैंने करवाया है. दिस इज अनदर वे टू क्रिएट अ पॉइंटर टू स्ट्रिंग. देखो यहाँ पर इस कोड को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर स्टार str. तो स्टार str डेक्लेरेशन स्टाइल से ही पता चल जाता है कि स्टार str इज अ पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप. आपको समझ में आ गया, स्टार ऐसे वैसे किसी भी वेरिएबल के आगे नहीं लगा सकते. whenever you use a star or indirection operator it will be a pointer variable, and when you are writing that it is a pointer. So str is a pointer of character data type. That is the meaning. And now I have written equal to in a quotation mark hello. तो ये जो हेलो, ये जो भी आप प्रोग्रामिंग में कोटेशन मार्क में लिखते हैं, इट इज कॉल्ड लिटरल. इट इज कॉल्ड लिटरल. ओके, लिटरल. हम लिटरली हम ये वर्ड यूज करते हैं. लिटरल मीन्स इट्स अ टेक्स्ट. ओके, तो जब भी ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर पता है क्या करेगा, व्हाट इट विल डू फॉर दिस लिटरल, it will convert this literal into a string and then it will be stored in a computer memory. And
the base address of the allocated memory will be assigned to the pointer str. देखो इतना छोटा वर्ड और काम कितना ज्यादा. Hello is a literal which will be converted into a string when program will run, and then that string will be stored in the memory, and the base address of the allocated memory will be assigned to the str. तो इस तरह से भी आप pointer to string create कर सकते हैं. Okay, and because in this case, I repeat, this is most important. Now this statement is most important, please everyone. And because this literal or the string created by compiler has no name, the pointer is the name of the string. मतलब इस केस में अगर इस ये hello के केस में इसका नाम पता है क्या है, क्या नाम रखेंगे इसका पता है? str. The same thing, because this string has no name, the pointer to this string is name of that string. I repeat, hello was a literal, compiler has converted into a string, and it is stored in the memory, and its base address is given to the pointer character pointer str. In this scenario, there is no name of the string, hence the pointer name is itself is a name of this string. str को ही हम उसका नाम बोल सकते हैं. Okay, str is the name of this string. I hope you are clear. Okay, यही पे मैंने वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर स्लाइड में ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है. Okay, so str is now pointing to this string, so str plus 4. Okay, let us have a program. Okay, it is 12:48. I can understand. uh, let me check next teacher is there in the meet or not. uh, okay, so next teacher is coming. Meanwhile, let us discuss this. Okay, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस स्ट्रिंग कैरेक्टर्स थ्रू पॉइंटर. मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके हर एक कैरेक्टर को हम एक्सेस करेंगे यूजिंग पॉइंटर. ओके, तो ये दो तो बाय डिफॉल्ट है. यहाँ तक तो सब कुछ पता ही है सबको. ओके, नाउ प्लीज समवन हैज टू टेल मी व्हाट विल हैपन हियर. कोड आपके सामने है, उसे देख के कोई बता सकता है क्या होगा जब ये रन होगा. अहमदाबाद इज अ लिटरल, राइट. तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, it will be converted into a string, and that string will be stored in a contiguous memory space. और उसका जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, it will be assigned to a pointer star city, right. देखो, जब भी आप पॉइंटर टू स्ट्रिंग क्रिएट करें, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? कैरेक्टर. ये मैंने बहुत पहले ही आपको सिखा दिया था कि पॉइंटर शुड बी डिक्लेयर्ड विथ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप. अगर आपको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है पॉइंटर को, तो पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए. अगर आपको कैरेक्टर का एड्रेस असाइन करना है पॉइंटर को, तो पॉइंटर का डेटा टाइप होना चाहिए कैरेक्टर. और यहाँ पर हमने कैरेक्टर स्टार सिटी लिखा है, तो सिटी इज अ पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप विच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी कैरेक्टर वेरिएबल. सो यहाँ पर क्या होगा जब ये कोड रन होगा, अहमदाबाद विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग, it will be stored in a memory, and its base address will be assigned to the pointer city. Okay, and because this string has no name, city is the name of the string. Okay, let's go ahead. Now we want to access each character of this string, right. So how we can do that? So here what I have written, while star city is not equal to null, मतलब हमें पता है कि ये ऐसे स्टोर हुआ होगा मेमोरी में. मैं पूरा नहीं लिखूंगा. ए और लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो होगा डी, और उसके बाद नल. लास्ट कैरेक्टर विल बी नल फॉर इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग. तो जब तक स्टार सिटी लिखने से क्या होगा, जब देखो सिटी अगर पॉइंटर है, ओके, सिटी इफ इज अ पॉइंटर, तो स्टार सिटी लिखने से इट विल गेट दी कैरेक्टर. ओके, तो जब तक
स्टार सिटी मीन्स स्टार सिटी इज इंडिकेटिंग अ नल कैरेक्टर, तब तक ये लूप घूमता रहेगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ परसेंटेज सी परसेंटेज यू। परसेंटेज सी के लिए हमने आर्ग्यूमेंट रखा है स्टार सिटी, मतलब डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर, तो कैरेक्टर प्रिंट होगा, और सिर्फ सिटी लिखेंगे तो एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि सिटी ओनली इज अ पॉइंटर एंड स्टार सिटी इज डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर, राइट। देन सी टी प्लस प्लस करने से क्या होगा, इंक्रीमेंट एक होता जाएगा। पॉइंटर इंक्रीमेंट, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर एड्रेस को पॉइंट करेगा, राइट राइट। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम रखते हैं, कल देखेंगे इसको फिर से, ठीक है। चलो, वी आर अबाउटिंग द लेक्चर नाउ, आई गेस नेक्स्ट लेक्चर, okay, I'm leaving, right? This lecture is over. If you have any question you can ask.